माता की भारत माता की। आप उनके साथ खड़े रहोगे जैसे आज आपने जोश दिखाया सिविल डिफेंस का वॉलंटियर बनने की तरह से। सो हे गाइस वेलकम बैक टू मेरा ब्लॉग तक स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ब्लॉग ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸੈਟਰਡੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਭਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਚਲਾਨ ਭਰਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਵੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਸਾਈਲ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਸੀਨ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਛੇਤੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ, ਚਾਬੀ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਇੰਜਨ ਔਨ। ਦੋਸਤੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਚਲਾਨ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ। ਅਤੇ PPF ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨਾ ਅੱਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਲਾਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ 22 ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਅੱਜ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਟਰ 22 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲਦੇ, ਹਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਖਾ ਵਾਲੀ ਫਲੋਰ ਲਈ ਆ। ਬੂਥ ਨੰਬਰ 149। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਵਾਰ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਮੋਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਲਿੱਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰ 22 ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਵਾਸ਼ 'ਤੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿੱਤੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦ ਤੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ। ਜੇ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸੇਮ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਰੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਸੈਕਟਰ 18, ਉੱਧਰ ਨਾ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਭਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 18 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉੱਧਰ ਫੋਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਮ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਨਾ ਫੋਰਮ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਰਮ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਸੀਨ ਬਣਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਭਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਫਟਾਫਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਅੱਜ, ਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद।
ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੋਊਗਾ। ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰੈਲੀ ਰੂਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਇसी ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਸਭ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। एक बैच वहाँ पे 1000 लोगों का ट्रेनिंग शुरू हो गई है, लेकिन चूंकि संख्या हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा थी तो दूसरा बैच हमने यहाँ पे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट अभी किया है। ट्रेनिंग प्रिपरेशंस में यहाँ डिले हुआ, उसकी वजह सिर्फ यही थी क्योंकि यहाँ के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे और हमने अभी तुरंत इमरजेंसी में यहाँ की अरेंजमेंट्स की हैं। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सबसे पहले आपसे मैं अभी थोड़ी देर के बाद हमारी रेड क्रॉस की टीम्स, सिविल डिफेंस की टीम्स और फायर की ताकि यहाँ पे हमारी टीम्स आपको एक बार ट्रेनिंग दिखा सकें। उसके जस्ट बाद आपके लेफ्ट साइड में हम स्टॉल्स लगाएंगे जहाँ पे जो फॉर्म्स हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर के वो आप फिल करके जाएं। जिन लोगों के पास ऑलरेडी फॉर्म है वो वहाँ डिपॉजिट करा दें, जिनके पास फॉर्म नहीं है वो कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से फॉर्म और उसके बाद फिल करके और फिल करने के बाद यहाँ से जाएं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया यहाँ की जो बेसिक ट्रेनिंग मैंने आपको बताई उसके बाद ही करें और फॉर्म पे अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें ताकि हम उनको फीड करने के बाद आपको सेक्टर वाइज जो एड्रेस और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें ताकि सेक्टर वाइज आपकी आगे ड्यूटीज़ लगा सके। तो आपको फिर अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग एरियाज़ में, विलेजेस में बांटा जाएगा और जो आपके सेक्टर इंचार्जेस होंगे वो आपको अलग से छोटे लेवल पे बुलाएंगे, ट्रेन भी करेंगे और आपको आगे ड्यूटीज़ देंगे। तो आज के लिए अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सारे लोग प्रॉपरली ट्रेनिंग करने के बाद ही यहाँ से जाएं। आप लोगों के धैर्य की और आप लोगों के पैशन की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे मौके पे आपने अपने आप को वॉलंटरी सर्विस के लिए आगे किया। दोस्तों ਹੁਣ ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है, सारे बैठ गए हैं, ग्राउंड खाली हो गया बस। फायर की गाड़ी में बहुत सारे हमारे रेस्क्यू टूल हैं, हमारे पीपी किट है, पीए सेट है, वो आप देख रहे हो। एक फायरमैन ने पीए सेट पाया है ना, ब्रीथिंग प्रेशर से नहीं ऐसी। आज इस टीम में सिविल डिफेंस के अंदर बहुत सारे हमारे अच्छी तरह मैं बता रहे हैं कि फायर की बोलते हैं उससे पहले हमारा सिविल डिफेंस का काम है। फायर भैया हो जाए उस टूल के हेल्प से वो उसको तोड़ सकते हैं और अंदर एंट्री कर सकते हैं। हमारे पास देखा होगा कि कई फायर इंजीनियर के बाद कोई ऐसा गहरा हो जाए धुएं में तो कैसे करेंगे। फायरमैन लिफ्ट करके दिखाएंगे। फायरमैन लिफ्ट बोलते हैं इसको, आदमी को एक कंफर्टेबली वो अपना भी बचाव कर सकता है और अंदर से वो कैजुअलिटी को भी निकाल सकता है। ये फायरमैन लिफ्ट है, उसको फायरमैन लिफ्ट बोलते हैं। आराम से आदमी को उसको कैरी करके बाहर डॉक्टर टीम के पास लेके जा सकते हैं। रखेंगे आप जैसे नौजवान आगे आएंगे तो हमारे देश की आर्मी कभी भी नहीं झुक सकती किसी के आगे और आप उनके साथ खड़े रहोगे। जैसे आज आपने जोश दिखाया सिविल डिफेंस का वॉलंटियर बनने के लिए, आपका इतना जोश है वो हमारे लिए बहुत बड़ा अपने देश के लिए योगदान है एक तरह से।
का मतलब है सिविल में रह के, सिविल में रह के, सिविल का मतलब आप अपने घर के आसपास रह के। नहीं, आप एक बनाइए हाथ का, ये फायरमैन। चंडीगढ़ और जे&के एडमिनिस्ट्रेशन, आप सभी का इस सिविलियन ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो ये संख्या है ये दर्शाती है कि किस प्रकार आपके सीखने की जिज्ञासा और आपकी जो ये संख्या है इतनी, इस चीज़ों को दिखाते हुए देशभक्ति का एक भाव क्या होता है और समर्पण क्या होता है। नागरिक होते हुए आप सभी से कृपया अनुरोध करूंगा मैं कि कोई भी भगदड़ यहाँ पे ना मचाए। सभी सीखने आए हैं और हम आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट इसीलिए है, कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए। वार्निंग सिस्टम ये किस प्रकार से काम करता है, और इस समय भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव का जो विषय चल रहा है, किस प्रकार से आपको इन अर्ली सिस्टम को फॉलो करना है, इनकी रूल गाइडलाइंस को फॉलो करना है, टाइम तक CPR लेना है, इस बारे में हम सीखने वाले हैं। जो थर्ड हमारा है विषय वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट, जो आप यहाँ पर एक साथ उपस्थित हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है और ये काम कैसे करता है, जब तक इस चीज़ की आपके पास नॉलेज नहीं होगी तब तक आप चाहे फायर डिपार्टमेंट द्वारा, सिविल डिफेंस द्वारा, आपदा मित्र की टीम द्वारा, चाहे मेरी DDMA हो, NDMA मेरी टीम हो, उसके द्वारा कुछ भी दिखाया जाए, सिखाया जाए, कोई काम का नहीं है। ड्रिल हो रही है, ये मानव निर्मित आपदा है। वॉर एक मानव निर्मित आपदा है जिसे ह्यूमन मेड डिजास्टर कहते हैं। और कोई आप में से बताओ क्या क्या है ह्यूमन मेड के डिजास्टर? केवल मैं बताने नहीं, कोई भी आगजनी, वेरी गुड, जो भी इधर से बताया वेरी गुड। और क्लाइमेट चेंज गुड। और पर्सन को पता है क्या करना है और 90 को नहीं पता, टोटल 100 जन हो वहाँ पे। उस 90 से जो आपकी भगदड़ मचेगी ना आप बच पाओगे और ना ही अर्थक्वेक जितना आपको नुकसान पहुँचाना चाह रहा था उतना नुकसान उसने पहुँचाया भी नहीं। मान लो रिएक्टर स्केल 5 और 6 पे आया, इसको मिनिमम मानते हैं, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लाइफ की डेथ नहीं होता, लॉस नहीं होता। लेकिन आपस में भगदड़ मचाकर, पैनिक करके, एक दूसरे को धक्का मुक्की मार के, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के हम उस विक्टिम को डेंजर जोन में डाल देते हैं। जब हमारी टीम विजिट करती है तब हमें रियलिटी पता लगता है कि किस प्रकार से कितना विक्टिम जोखिम है, कौन सा डेंजर जोन में है, वो फाइंड करना पड़ता है, उसको पॉजिटिव दिशा की ओर उपयोग कर रहे हैं। मान लीजिए अभी यहाँ इमरजेंसी मूव्स करके दिखाई गई, ठीक है, आप गए किसी विक्टिम के पास, आपके पास इमरजेंसी मूव्स के कोई तरीके नहीं पता। अब आपको फाइंड करना है कि क्या आपके रिसोर्सेज हैं, आसपास ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अकेले ही उस विक्टिम को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर सुरक्षित पहुंचा सकते हैं। इट्स कॉल्ड अ लिफ्टिंग शिफ्टिंग रेस्क्यू मेथड। आपको उदाहरण देता हूं, NDMA की गाइडलाइंस हैं, ब्लैंकेट, पिल्लो, ये ऐसे 2 रिसोर्सेज हैं जिस पर आपको सबको होमवर्क देना चाहूँगा कि घर पे जाकर ब्लैंकेट को आपने फोल्ड करना है, उस पर किसी को लिटाना है, फिर 4 जने पकड़ोगे एक साइड से और उसको लिफ्ट करके एक जगह पे शिफ्ट करना है। इसे कहते हैं इम्प्रोवाइज टेक्निक। क्या कहते हैं? इम्प्रोवाइज टेक्निक। और ये टेक्निक आपके काम आने वाली है जब तक आपकी ब्रीथ इस धरती पे है, इस यूनिवर्स पे है। ये लाइफ फुल स्किल है, खुद को बचा पाओगे तभी किसी और को बचा पाओगे, ठीक है। ये थ्योरी वाला ज्ञान नहीं है, ये किताबी ज्ञान नहीं है, किसी भी टाइम काम आने वाला ज्ञान है ये। किस प्रकार से आपका रिस्पॉन्स किसी आपदा डिजास्टर के समय हो रहा है, वो बहुत ही वेरीफाई करता है कि कितना लाइफ बच सकती है, कितने प्रोडक्ट्स बच सकते हैं। उदाहरण के तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट के पास कॉल आया कि यहाँ पर आग लगी है। अगर फायर डिपार्टमेंट लेट करे वहाँ तक पहुँचने में तो क्या सिचुएशन होगी? हादसा बढ़ेगा, कैजुअलिटी बढ़ेगी। इसलिए आपका रिस्पॉन्स बहुत निर्धारित करता है कि आपका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होना चाहिए।
घंटे में दी जा रही है। पर्सनली मेरे व्यक्तिगत तौर पे 2-3 साल की ट्रेनिंग है। 3 महीने जम्मू कश्मीर में, यहाँ JNK लिखा होगा, आप देख सकते हो ये जो पहना है मैंने। कई लोगों को लग रहा है मैं JNK से हूँ, नहीं, मैं चंडीगढ़ से ही हूँ। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से ही पहला मैं वेरीफाइड ट्रेनर हूँ। बेसिक जो यहाँ की ट्रेनिंग हुई चंडीगढ़ से ही हुई है। किसी भी व्यक्ति को देखा, विक्टिम को, उसका ब्रीथिंग अपसेंट है, हम गए CPR देना शुरू कर दिया ऐसे, ठीक है। ये गलत टेक्निक है, टेक्निक भी गलत है, आपका जो स्टेप उठाया गया है वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब तक उसका नर्व्स अपसेंट नहीं होगा, उसकी ब्रीथिंग अपसेंट नहीं होगी, एयरवे क्लियर नहीं होगा, तब तक आप CPR अप्लाई नहीं कर सकते। CPR देने से पहले 5-6 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। पहला ध्यान रखने योग्य बात है, आप जहाँ पे भी जाएं, किसी भी विक्टिम को एक सुरक्षित जगह पर पहले लिटा दें। उनके पास एक्सपीरियंस है, जो जिस टेक्निक से वो दे रहे होंगे ना CPR, वो बैठे बैठे भी काम कर जाएगा, और किया भी है, आप YouTube पर देखिएगा, ठीक है। लेकिन आपने एज अ बिगनर, एज अ बेसिक लेवल का CPR देने के लिए किसी विक्टिम को सुरक्षित प्लेस पर ले आना है और उसको लिटाना है, तभी आप एक बेसिक लेवल का CPR अप्लाई कर सकते हैं, जिसे BSL कहते हैं, ठीक है। बेसिक लाइफ जो हमारा सर्विस है लाइफ के प्रति होना चाहिए। आप अपने पे जो CPR के मेथड हैं वो अप्लाई कीजिएगा, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2 फिंगर कीजिए ऐसे, 2 फिंगर। अब हम जो डॉक्टर को दिखाते हैं जाके, तो डॉक्टर पहला लेफ्ट या राइट हैंड पकड़ के क्या चेक करता है? नर्व्स। ये नर्व्स नहीं चेक करना, ठीक है, ये बेसिक है, इससे कुछ नहीं पता। अगर मान लो ये एब्सेंट है तो इसका मतलब CPR देने स्टार्ट कर दोगे? नहीं। 108 नस नाड़ियाँ हैं योग आयुर्वेद के अनुसार, उन सभी तकनीक उनमें से कम 5-6 जगह पर आपको नर्व्स और पल्स चेक करना होगा। अगर उन 5-6 जगहों पे एब्सेंट होंगे तभी आप अप्लाई करेंगे CPR। पहला जो चेक करना है, यहाँ पर फिंगर कीजिए, आप नेक के पास रखिए, 2 फिंगर लाइए नीचे बिल्कुल सेंटर में नेक के, अच्छा दूसरा और अंदर को पिंच कीजिए, फील कीजिए अपने नर्व्स को। एक बार में पकड़ लिया ना आपने, और ऐसे अभी बताता नहीं, अगर मैं एक स्टेप तो ऐसे ऐसे करते रहते, कहाँ गया मेरा तो अपसेंट है, भी होंगी नहीं, है ना। कईयों को यहाँ पे भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये तरीके हैं चेक करने के, ठीक है। अगर ये नर्व्स प्रेजेंट है, कोई जरूरत नहीं है CPR देने की। ये प्रेजेंट है और ब्रीदिंग लॉस है, तब क्या करोगे? नहीं, ये प्रेजेंट है और ब्रीदिंग अपसेंट है, तो क्या आप CPR देंगे या नहीं? बस यस या नो। नो वाले हैंड खड़े करो, और CPR देंगे वो यस वाले, मतलब आधे आधे हैं, 50-50 हैं, जब तक आपका ब्रीथिंग अपसेंट ना हो। अब ब्रीथिंग अपसेंट कैसे चेक करोगे? ये नॉब तो चेक कर लिया। अब ब्रीथिंग के लिए फॉर्मूला है LLF। क्या है? लुक, लिसन एंड फील, ठीक है। अब इन पे हम लुक, लिसन, फील अप्लाई करते हैं, इनका ब्रीथिंग चेक करने के लिए प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। आपने अभी मान लो ये खड़े नहीं है, लेटे हुए हैं, आपके पास जो भी कुछ प्रोडक्ट है, कोई भी रुमाल हो, कोई भी वस्तु हो, उनके लाके पीठ पे रख देना है, ठीक है। अब आपने लुक किधर को करना है? इनकी पेट की तरफ, इनकी स्टमक की तरफ, और अपने नोज को इनके कान के पास लगाना है, क्लियर। और फील करना है इनके एयरवे को। अगर इनके स्टमक पे जो हैंकी रखा है अप एंड डाउन नहीं करता, इनहेल एंड एक्सेल नहीं करता, तो आप पूरा का पूरा फोकस रखना अपने कानों पर, इसकी ब्रीथिंग साउंड को सुनने के लिए। अब आप कहेंगे ब्रीथिंग की भी कोई आवाज़ होती है, चलिए फिर इसको भी प्रमाणित करते हैं। 2 फिंगर ऐसे कीजिए, ध्यान नोज के नीचे रखिए, इनहेल एक्सेल। पता लग रही है आपकी ब्रीथिंग प्रेजेंट है एब्सेंट है? सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पर कान लगाएंगे नोज के पास किसी विक्टिम के, तो आपको पता लग जाएगा। के लिए अब रेडी होते हैं, आपने ऐसे कीजिए साहब, सभी ऐसे कीजिए, हाथ आगे, ठीक है। कोई माइक पकड़ेगा? आप ऐसे करें, ये CPR की जो मुद्रा जिसे कहते हैं योग मुद्रा होती है ना, ऐसे वो मुद्रा बनने जा रही है CPR फॉर्म में, ठीक है। सर्टिफाइड बाय NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
अब सेम इस राइट हैंड पे ऐसे ग्रिप बनाइए लेफ्ट हैंड को रखते हुए, ठीक है। अब जो ये आपकी मुद्रा बनी है सेम लोकेशन पर अप्लाई होगा जहां पर आपने फाइंड किया है सीपीआर देने के लिए। चलिए नॉर्मल हो जाइए। अब फाइंड करते हैं हम कि सीपीआर देना का है, राइट साइड लेफ्ट साइड बताइए। बीच में परसों तो देखे हैं जब भी लेफ्ट राइट करूँ। लेकिन अगर आप इस लोकेशन पर आप सही मुद्रा में करके आप अपने रैप अच्छे से कर रहे हो, जैसे जिम में रैप मारते हैं वैसे, तो उसका प्रेशर ठीक पड़ेगा, उसकी ब्रीथिंग वापस आ सकती है, उसके नर्व्स वापस आ सकते हैं। क्लियर? आपने फाइंड कैसे करना है, 2 फिंगर ऐसे दीजिए। अभी यहाँ पर डम्मी नहीं है, अभी फिलहाल मैं टैगोर थिएटर में सारा डम्मी के साथ अभी एक्सप्लेन करके आया हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग दे के आया हूँ। यहाँ पर अभी ले आ नहीं सका क्योंकि वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया, ठीक है। उसको भी ट्रीटमेंट फर्स्ट एड की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ, खुद ही आप बैठे बैठे आप अपने पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। 2 फिंगर अपने यहाँ पर रखें। अब आपने वो लोकेशन फाइंड करनी है जहाँ पर आपकी स्टमक की स्किन शुरू होती है और लंग्स के बोन खत्म होते हैं। चलिए सेंटर में ऐसे करते करते आइए, जो इधर बैठे हैं फाइंड कीजिए। ये मेरा जेड पॉइंट है, इसको जेड पॉइंट कहते हैं सीपीआर में, ठीक है। यहाँ पर मेरा खत्म हो रहा है लंग के बोन्स, अपने अपने चेक कीजिए सभी। फाइंड हो गया, क्लियर। अब इसके ऊपर नीचे नहीं, इसके ऊपर अपने दूसरे हैंड से 2 फिंगर रखो। आपका सीपीआर का लोकेशन फाइंड हो चुका है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर होगा। अगर आपका लेफ्ट साइड की ओर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टिल पूरा नहीं, थोड़ा सा, तो वो आप गलत दिशा की ओर आपने अपने फिंगर रखे थे, ठीक है। अब जो मुद्रा बताई थी वो ऐसे फिर से बनाओ। अब ध्यान क्या रखना है, आपका एल्बो और शोल्डर फोल्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। इस साइड में देख लें आप, नहीं दिख रहा, ठीक है। अब आपने नीचे जो लोकेशन फाइंड करी है सीपीआर की रखा, अपने बॉडी को ज़्यादा दूर नहीं करना विक्टिम से। मान लो जो आप अभी नीचे सीपीआर दे रहे हो, आपके पास कोई विक्टिम लेटा हुआ है, ठीक है। दूर जितना रहोगे सीपीआर उतना गलत होगा। जैसे देख लो एग्जांपल, और ये देखो, और यहाँ पर पास आए हम, बिल्कुल फाइंड करा, मुद्रा बनाई, रखा, और कभी भी सीपीआर देना है मन में नहीं काउंटिंग करनी, बोल कर काउंटिंग करना है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है अभी आप खुद मेरे को बताना, मैं वो गलती करूंगा, गलती पकड़ना मेरा, ठीक है। बिना बोले दे रहा हूँ सीपीआर। अब बोल के करूंगा, EMS अलर्ट, अप्लाई सीपीआर 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये हुआ एक सेट कंप्लीट। अगर आप जा रहे हैं सीपीआर दे रहे हो, जो आपका इधर से जो था एल्बो मेरा, वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सीपीआर परफेक्ट वे में अप्लाई नहीं होगा, डम्मी पे होगा या फिर रियल पेशेंट पे होगा, क्लियर। और इतने एरिया में मेरे तो हाथ इतने चौड़े हैं कि यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो ऑलवेज ऑब्वियस सी बात है ऐसे फोल्ड हो जाएगा। 5 to 6 सेंटीमीटर तक अंदर प्रेशर जाएगा। बच्चों पे अलग होता है, अडल्ट, ये अडल्ट के लिए, बच्चों वाले पे अभी बाद में आएंगे, पहले बच्चे का अडल्ट का सीपीआर है। तकिए का जो साइज होता है वो हमारे अपर बॉडी पार्ट के बराबर होता है, इसलिए उसको इम्प्रोवाइज टेक्निक में यूज़ किया जाता है। तो ये आप सभी का होमवर्क है कि आपने आज घर पे जाकर सीपीआर उस तकिए के ऊपर देना। अगर आप क्लियरली उस पर अच्छे से दे पा रहे हैं सीपीआर, तो आप नेक्स्ट लेवल जिसे कहते हैं सेकंड लेवल है, वो है डमी, ठीक है। उस पर देने के लिए आप अप्लाई हो सकेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਕਰਵਾਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ VIP ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ VIP ਆਏਗਾ, ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਦੋਸਤੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਤੀਰਾ ਗੁੰਡ ਸੈਕਟਰ 47। घर जाके क्या करोगे? घर में कोई काम थोड़े हैं, खेती बाड़ी से थोड़े गुजारा हो जाता है। गाइस आप यहाँ पे जरूर आए सेक्टर 47 में।